What is it called? Bansi Dongri. Let's stop pressurizing them with the dreams of doctor bano, engineer bano, lawyer bano, please. If I get off the jeep, I'll leave a footprint. Heavy metal motorcycles and mountains with Yuri. Thank you. Hey, welcome back with Yuri. And I'm in Bandhavgarh. As you all have been following my stories on Instagram, you would be already aware of it. Right now, I am with Roar's Kingdom, Ajansh Dubey himself. And we are about to do a short trek up the place called, what is it called? Bansi Dongri. Bansi Dongri. I want to introduce a very special person. Oh yeah, sure. Rajmani Tiwari. Arey, Mr. Rajmani Tiwari. Hello. He takes people to the safari and... he's a Sarathi. Now, the word Sarathi, of course, आपने महाभारत में सुना होगा, लेकिन बांधवगढ़ में Sarathi का मतलब होता है that amazing drivers who drive those gypsies inside Bandhavgarh और बांधवगढ़ के अंदर गए होंगे तो you would have seen, if you've ever been there, the soil isn't soil, it's sand. And maneuvering वो gypsy doing turns, 360-degree turns and all, बच्चों का काम नहीं होता है. बहुत हाईली स्किल्ड ड्राइविंग स्किल चाहिए बांधवगढ़ के अंदर चलाने. बांधवगढ़ का एक कैंडिडेट है लक्ष्य. Hey, hi, Laksh. He will take us today. Oh, he's going to take us to one. We'll get to know more about Laksh once we reach on top of the dome. See you there. And Bandhavgarh. Oh yeah, all of us Bandhavgarh, sporting Bandhavgarh, right? Oh yeah. And we are on top of Bansi Dongri. What is around Bansi Dongri, all that we are going to show. But before that, I want all of you to say hi to a new friend of mine. Young chap, 13-14-year-old boy. He's in 9th standard and he spent his entire life since he was a child in and around Bandhavgarh. So can you imagine the amount of wildlife knowledge this kid would have? So yeah, without much ado, say hi to this sweet little boy here, Laksh. हेलो. लक्ष्य यादव. सो लक्ष्य हमें बताओ यार, सो तुम्हारा बचपन यहीं पर गया है और तुमने काफी सारे कौन से जानवर देखे हैं अभी तक तुमने? मैंने स्पॉटेड डियर, स्लॉथ बेयर, टाइगर, लेपर्ड. लेपर्ड्स भी देखे? हाँ. वाह. और पाइथन. पाइथन देखा है? बांधवगढ़ में है पाइथन? हाँ. अरे वाह. कैसे, मतलब आप जा रहे थे सफारी में और दिख गया पाइथन? नहीं, यहाँ पे ताला में लेके आए थे फॉरेस्ट वाले. अच्छा, लेके आए थे क्या? ओ. वाह. सो और तुमने कौन से टाइगर्स देखे हैं अभी तक बांधवगढ़? मैंने कजरी, हाँ. बमेरासन, भगोड़ा मेल और बीटू. ओके. और बहुत से देखा. Can you imagine? This kid has seen so many tigers in Bandhavgarh. That means since his childhood, can you believe it? He's grown up seeing tigers. So his childhood memory is filled with evolution of tigers in Bandhavgarh. What a lucky childhood this boy has. Yeah. So, मुझे ये बताओ, तो इतने सारे एनिमल्स और बर्ड्स का आपका काफी नॉलेज बढ़ गया होगा. सो अभी स्कूल में तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश फेवरेट है? हाँ.
इंग्लिश क्यों? बायोलॉजी जूलॉजी में कुछ इतना तुम्हें वाइल्ड लाइफ का सब शौक है तो कभी बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी ऐसे इसमें नहीं सोचा कभी? अभी अच्छे से उसके बारे में ज्यादा पता नहीं है। ठीक है, अभी तो 9th स्टैंडर्ड में हो, काफी टाइम है तुम्हारे पास सोचने के लिए, लेकिन अब से सोचना शुरू कर दो। लाइफ में करना क्या चाहते हो? वाइल्ड लाइफ संबंधित कुछ करना चाहते हो लाइफ में और कुछ करना चाहते हो? नेचुरलिस्ट। Naturalist, look at that people. Please, this is a request to all parents. अगर आपके घर में बच्चे हैं, let's stop pressurizing them with the dreams of doctor बनो, engineer बनो, lawyer बनो. Please, ये जो बच्चा बनना चाहता है एक बहुत ही amazing career opportunity है of being a naturalist, a career as a naturalist. इस लक्ष्य को पूछने वाला हूँ कि नेचुरलिस्ट का बेसिक काम क्या होता है? Tell us, नेचुरलिस्ट का काम क्या होता है? सफारी में ले जाना गेस्टों को और फॉरेस्ट के बारे में बहुत सारी चीजें बताना, बहुत सी अच्छी चीजें बताना, किस पार्क में आप हैं उसके बारे में बताना। क्यों ये प्राणी और ये पर्यावरण क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि साइंटिस्ट और सब लोग बोल रहे हैं कि आने वाले समय में अगर पेड़ और ऐसे सब अगर हम लोग पौधे सब नहीं लगाएंगे तो आने वाले समय में हमको बहुत दिक्कत होगी। बहुत दिक्कत होगी मतलब अभी तुम छोटे हो, शायद तुम बड़े हो गए तो कुछ भविष्य ना रहे। हाँ। अगर प्लेनेट ही नहीं रहा तो तुम क्या करोगे, है कि नहीं? Very good. Did you see that? Wow. Lakshya, thank you very much. Now, I'm going to let Lakshya tell us what is around us in just a minute. Take a look at this magnificent view. And Lakshya is with me. Lakshya, अब बताओ कहाँ पर क्या क्या है? ये यहाँ पर क्या है? उधर इस तरफ है ताला जोन। ये ताला जोन है। हाँ। ठीक है। और इस तरफ है खितौली जोन। खितौली जोन, जहाँ पर मैं आज सुबह सफारी करके आया हूँ। हाँ। ठीक है। थोड़ी और उसके इस तरफ है। हाँ, उधर मतलब इस तरफ है मगधी जोन और उस तरफ है खितौली जोन। मगधी इधर है क्या? हाँ, इधर है मगधी और उस तरफ है खितौली। और यहाँ से सारे जोन्स में तुम कह रहे हो कि 100 से ज्यादा टाइगर्स हैं यहाँ पर? हाँ, 100 से 100 प्लस। और इसमें यही बांधवगढ़ है ना ऊपर वो? और ये क्या है, ये जो ऊपर छोटा सा है ये? बधैनी हिल है। बधैनी हिल, ये जो ऊपर ऐसे दिख रहा है। और इसमें वल्चर हिल कौन सा है? वल्चर स्पॉट है कुछ है ना यहाँ पर? वल्चर पॉइंट कहते हैं शायद। हिल में है वल्चर पॉइंट। Isn't it beautiful? और इस तरफ है पनपथा। कहाँ पर? इस तरफ? इस तरफ। हाँ, पनपथा। पनपथा जोन। अच्छा, इस तरफ पनपथा जोन। वो अभी ओपन नहीं है। क्यों? वहाँ पे सर टाइगर सफारी बनने का चालू हो रहा है। हाँ। सफारी चालू। इतने पूरे कर्व में 100 से ज्यादा टाइगर्स हैं? 100 से हाँ। हैं? Incredible, incredible man, beautiful. Yes, Ajanj. Tell me. How are you, sir? Hope Arre. you're enjoying the nature. Oh, I am going nuts, bro. I love it here. Thank you so very much for inviting me, man. Thank you so. I want to welcome Mr. Uday Iyer, sir,
and welcome to the Central India and welcome to the heart of India named as Bandhavgarh Tiger Reserve and the Rose Kingdom, जो कि एक मेरी छोटी सी टूरिज्म कंपनी है, वो तहे दिल से आपका स्वागत करती है। और अभी जिस जगह पे है हम वो बोलते हैं इस जगह को बंसी डोंगरी। बंसी डोंगरी एक पीक है जो कि पेरिफेरल एरिया में बनी हुई है बांधवगढ़ के। और अगर आप चारों तरफ से थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे तो देखेंगे सिर्फ फॉरेस्ट मिलेगा और यहाँ जो जोन्स हैं फॉरेस्ट के दूर दूर से आप वो देख सकते हैं। और यहाँ सबसे बेस्ट है, अगर आप अंदर से रियलाइज करें तो आप जिस डायरेक्शन में अपना कैमरा घुमाएंगे वहाँ बाघ है, मीन्स टाइगर। एनिमल्स मूव कर रहे हैं, चाहे वो हर्बीवोर हो, कार्निवोर हो, इंसेक्ट्स हो, बटरफ्लाई हो, स्पाइडर हो या फिर 280 प्लस स्पीसीज ऑफ बर्ड्स हो। कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानवर मूवमेंट कर रहा है। ह्यूमन भी जैसे एक इंसानी जानवर है, हम अपनी टेरिटरी जहाँ पे हमें अलाउड है हम वहां आके इस नेचर को ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं उधर सर से एक चीज बोलूंगा, सर अब आप जाएंगे तो हमारी एक सेइंग होती है कि टेक नथिंग बट मेमोरीज, लीव नथिंग बट फुटप्रिंट्स। सो डेफिनेटली सर जब आप जाएं तो एक अच्छी मेमोरी लेके जाएं और आपके फुटप्रिंट्स यहाँ छोड़ के जाएं, वही एक यादगार बन के रहेगा। Hey, hold on. Footprints? Well, in the morning safari, it's a rule, right? I'm not supposed to get off the jeep. If I get off the jeep, I'll leave a footprint. That's a really important point which Uday sir have focused. ये सफारी में नहीं करना है आपको। सफारी में सेंटर पॉइंट में और अगर कोई कैंप में आपको वॉशरूम के लिए अगर ड्राइवर एंड गाइड अलाउ कर रहे हैं वहां पे अपने फुटप्रिंट्स छोड़ सकते हो। If we are waiting for any herbivores or carnivores to cross or sighting, वहां पे आप नहीं उतर सकते हैं। That is a basic key rule. 5 rules मैं हमेशा अपने गेस्ट्स को बताता हूँ। The first, no sound, no getting down out of gypsy without permission of driver and guide, no littering, कोई भी कचरा नहीं फैलाना है आपको। अगर कुछ खा भी रहे तो जिप्सी के अंदर डालिए, गार्बेज बैग लेके चलिए साथ में। 5th इज नो आर्म्स कैरी, कोई आर्म्स कैरी नहीं करना है आपको। एंड द फिफ्थ वन मुट्ठी बांध देगा आपका। जो 5th रूल होता है वाइल्ड लाइफ का कि प्लीज 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 फॉलो ईच एंड एवरी वाइल्ड एनिमल्स एंड फ्लोरा एंड फौना। आप सबको फॉलो करेंगे डेफिनेटली। टाइगर इज अ पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ इज नॉट अ पार्ट ऑफ टाइगर। आपको टाइगर दिखेगा क्योंकि वाइल्ड लाइफ का पार्ट है। पेशेंस के साथ सफारी करते रहें डेफिनेटली। भले एक सफारी में ना देखे, 2 सफारी में देखे, 3 सफारी में बोलता हूँ, 10 सफारी में देखे, लेकिन अगर पेशेंस आप रखेंगे तो कभी ना कभी किसी न किसी टाइगर रिजर्व में आपको टाइगर की साइटिंग जरूर होगी। You know what I want to add here was something which I learned from Ajansh only. Yeah, tiger, आप टाइगर को नहीं देख सकते, टाइगर आपको देखेगा जब उसकी मर्जी होगी। को आगे आके पे फोकस करता हूँ। पीक है, इस पीक के टॉप पे जो बांधवगढ़ जिसके नाम से जाना जाता है, बांधवगढ़ ये एरिया है, बांधवगढ़ फोर्ट उसी पीक पे लोकेटेड है। वहां पे राम जानकी मंदिर है जो कि सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी में टूरिस्ट के लिए खुलता है। हजारों और लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और पैदल जाते हैं बांधवगढ़ एंट्री गेट से, ताला एंट्री गेट से, और दर्शन करके आते हैं। साल में सिर्फ एक और बार वहां और एक बार कबीर जयंती पे वो मंदिर खुलता है, वो फोर्ट खुलता है, जहाँ पे 8 से 8.5 किलोमीटर का ट्रैक होता है एक तरफ का पैदल। और ये ठीक बाजू में अगर देखें एक छोटी सी पीक और दिख रही है, उसको हम वल्चर पॉइंट बोलते हैं। और वो एक वल्चर पॉइंट है, वल्चर कंजर्वेशन एरिया भी है यहाँ पे। वल्चर्स जब एक्सटिंक्शन के कगार पे थे तो यहाँ पे उनको सेव किया गया और उनको यहाँ पे कंजर्व किया गया और आज कई वेराइटीज ऑफ वल्चर्स आपको मिलते हैं। 5 वल्चर्स हैं। हाँ जी, 5। तो वल्चर्स की जो ने बताया कि 5 वेराइटीज ऑफ वल्चर है, तो यहाँ पे मिलता है ग्रिफिन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, ये 3 किंग वल्चर, और 5th का वल्चर का मुझे भी याद नहीं आ रहा। अगर लक्ष्य से मैं पूछूंगा कि अगर कुछ वल्चर का नाम याद हो तो एक और वल्चर होता है जिसका नाम जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट डेफिनेटली आई गेट बैक टू यू विद दैट वल्चर्स नेम। और अगर आप स्पेशली ताला जोन में जाएंगे, जो राजबहरा एरिया है, राजबहरा एक तालाब भी है, राजबहरा एरिया के पास वल्चर्स आपको अच्छे से ग्रासलैंड पे बैठे मिलते हैं। कई बार मैंने देखे हैं वहां पे ग्रिफिन एंड रेड हेडेड एंड इजिप्शियन वल्चर्स वहां पे बैठे मिलते हैं। सो दैट इज अमेजिंग गाइस कि वहां पे इतना मजा आता है कि अगर आपको टाइगर दिख रहा है, वल्चर्स हैं, बर्ड्स हैं, हर्बीवोर्स हैं, कार्निवोर्स हैं, जैकॉल है, वाइल्ड बोर है, स्लॉथ बेयर है, इंडियन गौर है, सांबर डियर, बार्किंग डियर एंड स्पॉटेड डियर्स, इतना मजा आता है वाइल्ड लाइफ करने में कि ट्रस्ट मी, आप एक बार सफारी अगर कर रहे हैं, इट्स योर फर्स्ट टाइम, आप कभी भी उस चीज को नहीं भूल पाएंगे। सो गाइज, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, वाइल्ड लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज टेक सम टाइम,
आप हिल स्टेशन जाना चाहते हैं, आप बीचेस जाना चाहते हैं, आप डेजर्ट जाना चाहते हैं, आप डिवोशनल प्लेसेस जाना चाहते हैं, जाइए, बिल्कुल जाइए. रोज किंगडम इज देयर, बट डेफिनेटली रोज किंगडम के अगर आप पार्ट बन रहे हैं तो एक ना एक बार रोज किंगडम आपको वाइल्ड लाइफ के लिए भी जरूर इंसिस्ट करेगा, और एक बार आप आएंगे तो डेफिनेटली दैट विल बी वन ऑफ योर बेस्ट मोमेंट्स. सो स्टे ट्यून्ड विद रोज किंगडम एंड थैंक यू विद यूरी. Heavy metal motorcycles and mountains with Yuri. Thank you. Thank you for watching. If you like my content, don't forget to like, comment, subscribe and hit the notification bell. Until the next time, don't do anything that I wouldn't